The topic that I am going to discuss is value chain process, that is of Unit 1 of Supply Chain and Logistics Management, coded KMBOM01. Source that you may refer for this topic is Supply Chain Management Strategy, Planning and Operations, Chopra Mendel, that is textbook of Supply Chain and Logistics Management. And you may refer some blog also, and you may refer the renowned book of Marketing Management of Philip Kotler for that. Okay. So this is Professor Alok Singh, Assistant Professor IT and Operations Management area at Ajay Kumar Garg Institute of Management, Ghaziabad. So I am going to discuss about the basic introduction about value chain process. So what is value chain? So a value chain is a business model that describes the full range of activities needed to create a product or service. वैल्यू चेन का जो कॉन्सेप्ट है ये सप्लाई चेन डिमांड चेन से कहीं ज्यादा बड़ा है, मींस इन टोटलिटी अगर आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डिमांड चेन मैनेजमेंट को मिला दें तो वैल्यू चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है. ठीक है, तो वैल्यू चेन इज अ बिजनेस मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द फुल रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट नीडेड टू क्रिएट द प्रोडक्ट एज वेल एज product or service. Okay, so basically I have told you about the 5 major elements of supply chain management, that are supplier, manufacturer, distributor, retailer and customer. तो इन पांचों में अगर आप सप्लाई चेन देखें तो वो सप्लाई चेन पार्ट, डिमांड चेन पार्ट, अगर इन सभी को कंसीडर करते हैं तो दैट विल नोन एज द वैल्यू चेन पार्ट. मींस यू नीड टू आइडेंटिफाई ऑल वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज in these elements. Okay, and you need to then manage all these activities, then it is known as the value chain management. So for companies that produce good, a value chain comprises the step that involve bringing a product from conception to distribution and everything in between, such as procuring raw material, manufacturing functions and marketing activities. If you see all these 5 elements, you may see that procurement occurs in between supplier and manufacturer. After that, manufacturing occur at manufacturer part. Okay, and after that, delivery part means all marketing related activities occur during this manufacturer to customer part, means in distributor and retailer part. Okay, so all these activities comes under the domain of this value chain. Okay, means you need to consider in totality, that is known as the value chain concept. So a company conducts a value chain analysis by evaluating the detailed procedure involved in each step of its business. So basically companies क्या करती हैं कि all value creating activities को identify करती हैं. What is value? Generally customer nowadays looking for the maximum perceived value, okay, of a product or service. तो जनरली कस्टमर वैल्यू, परसीव वैल्यू को कंसीडर करता है आज के टाइम में. ठीक है, व्हाट इज परसीव वैल्यू? मींस आई हैव पेड दिस मच अमाउंट एंड हाउ मच वैल्यू आई हैव गॉट इन रिटर्न. ओके, मींस कितना मैंने जितना पैसा पे किया है, क्या मुझे उसकी वर्थ मिल रही है. जनरली यही तो आप कंसीडर करते हैं जब आप कुछ भी परचेज करते हैं, है ना. जैसे एजुकेशन के लिए जब आप पे करते हैं तो क्या देखते हैं आप, आपको कुछ डेमो लेक्चर ऑफर किए जाते हैं. जैसे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में गए होंगे या किसी ट्यूशन के लिए आप जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले 1-2 दिन आप बैठ करके देखते हैं, है ना, 1-2 लेक्चर अटेंड करके देखते हैं, और उसके बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फर्दर अटेंड करते हैं. तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ सर्विस, है ना. और सर्विस में आप क्या देखते हैं? वैल्यू. क्या मुझे वैल्यू मिल रही है? क्या मैं जिस इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए इस पर्टिकुलर सर्विस को अवेल कर रहा हूं, क्या वो मुझे अप टू मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट मुझे मिल रही है, डिलीवर हो रही है वैल्यू. ठीक है, तो दैट इज नोन एज द वैल्यू चेन. तो बेसिकली कंपनीज क्या करती हैं, दे आर मैपिंग द वैल्यू इन ईच एलिमेंट ऑफ द सप्लाई चेन. ओके, तो हर एक एलिमेंट में, वो सप्लाई चेन के हर एक एलिमेंट में वो क्या देखते हैं कि वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मैप करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, जिससे कि कस्टमर को मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू ऑफ द सर्विस प्रोवाइड की जा सके. Okay, so the purpose of value chain analysis is to increase the production efficiency so that a company may deliver maximum value for the least possible cost. Okay, so the purpose क्या है basically value chain analysis का? प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना. ठीक है, जिससे कि कंपनी मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर कर सके टू द कस्टमर
एट लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम पैसे में। ठीक है, आप देखिए जो मोबाइल हैं, अब आजकल आप स्मार्टफोन लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा फीचर के साथ आप मोबाइल फोन लेना प्रेफर करते हैं एंड्रॉयड में। ठीक है, तो व्हाट इज दैट मींस मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू, है ना, ज्यादा से ज्यादा फीचर। मेगापिक्सल आप देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जा रहे हैं, पहले 8 और 5 मेगापिक्सल के साथ आया करता था, और अब इसका स्पेसिफिकेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, रैम का स्पेसिफिकेशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। और मोबाइल आप रेंज देखिए तो वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, मींस जो भी आपने अपना बजट कंस्टेंट लेके चला है उसके बेसिस पर आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं ई कॉमर्स पोर्टल पर जा करके। ठीक है, so what is that this is the value chain activity. Okay, so you need to map those value creating activities and you need to manage those value creating activities so that you can offer your customer maximum perceived value at lowest possible cost. Okay, so this is the concept, basic idea behind this value chain process. Now, if you go to this, this is a Porter generic, Michael Porter generic value chain activities. ओके, सो बेसिकली ये माइकल पॉटर आपको पता है कि स्ट्रैटेजी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में इन्होंने, इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, माइकल पॉटर के बारे में आपने सुना होगा। तो माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजीज हैं, है ना, कॉस्ट लीडरशिप, कॉम्पिटिटिव कॉस्ट लीडरशिप है आपका, और ये क्विक रिस्पॉन्स है एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने वैल्यू चेन मैनेजमेंट में भी ये एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करके बताई हैं कि दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज दैट यू नीड टू कैटर, है ना। जब आप वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करें तो कौन कौन से मतलब एक्टिविटीज हैं जिसमें आपको जो है प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं और उनकी सपोर्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 5 प्राइमरी एक्टिविटीज डिफाइन की हैं और उनकी वैल्यू चेन में ये आपकी 4 सपोर्ट एक्टिविटीज हैं जिसे सेकेंडरी एक्टिविटीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपने एक साथ ये प्राइमरी एक्टिविटीज और ये सेकेंडरी एक्टिविटीज को कंसीडर कर लिया तो देन यू विल गेट दिस प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, मार्जिन पार्ट, व्हाट इज मार्जिन। आप देखिए प्राइस को एक कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज्यादा आप नहीं ले जा सकते हैं, वो कंपटीशन पर डिपेंड करता है। आपने अगर कंपटीटर से ज्यादा प्राइस कोट की तो कुछ आपके पास प्लस होना चाहिए, है ना, वैल्यू वर्थ होनी चाहिए जिसके बेसिस पर आप जो है कंपटीटर से ऊपर प्राइस कोट कर रहे हैं। अदरवाइज यू नीड टू कोट योर प्राइस ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। ओके, तो अब इस केस पर आपको क्या करना है, अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते जाना है और वैल्यूज को बढ़ाते जाना है। तो वैल्यूज को किस तरीके से बढ़ाएंगे, ये प्राइमरी एक्टिविटीज, जैसे फर्स्ट है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, सेकंड है आपका ऑपरेशंस, थर्ड है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, फोर्थ सर्विसेज एज 5। तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज, और इसी तरह से सपोर्ट मीन सेकेंडरी एक्टिविटीज लाइक फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट। अगर इन सारी एक्टिविटीज को आप मैप करते हैं और इनसे अगर आप वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं देन ओनली यू विल गेट मीन्स मार्जिन। ओके, मार्जिन किस तरीके से लिया जाएगा, कॉस्ट को कंटिन्यूसली कम करते जाना है, फीचर्स को बढ़ाते जाना है, जिससे कि आपका जो मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, बेसिकली प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, और वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज के प्राइमरी और सेकेंडरी जो एस्पेक्ट्स हैं इनको कंसीडर करते हुए आप हाईएस्ट प्रॉफिट मार्जिन अटेन करते हैं। ठीक है, तो जनरली वो कंपनी जो आजकल आप कह सकते हैं ना मार्केट शेयर में प्रेफर करती हैं, ठीक है, वो कंपनीज आप देखिए तो वो वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करके और अल्टीमेटली उन्हें मैप करके और उसको कंसीडर कर रही है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल अगर आपको दूं तो अमूल कोऑपरेटिव, है ना, अमूल कोऑपरेटिव अभी इंडिया में पहले गुजरात स्टेट से स्टार्ट हुआ, और भी बहुत सारे आप देखिए इंडिया में 28 कोऑपरेटिव्स हैं जो स्टेट कोऑपरेटिव वर्क कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से एक स्टेट कोऑपरेटिव गुजरात अमूल गुजरात कोऑपरेटिव, जिसको अमूल भी कहते हैं, वो कंपनी अपने स्टेट से निकल करके पूरे इंडिया में पैन इंडिया वर्क कर रही है, और इसके अलावा 40 और कंट्रीज में भी वर्क कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मॉडल, है ना, सस्टेनेबिलिटी मॉडल। ये जो वैल्यू क्रिएटिंग मॉडल है, उन्होंने वैल्यू वर्थ क्रिएट की। ठीक है, जो अभी आजकल देखिए मिल्क के